All right, so a lot of people were asking for a list of important reports and indices for RBI Grade B 2025. So here I am, my dear friends, in today's video. In this particular video, I am going to give you a comprehensive list of all the reports, of all the important reports and indices for RBI Grade B 2025 or RBI Grade A 2025 examination. Now, not only I will be providing you the list, I will also tell you what all you have to cover, what all you have to read while going through a report, कहां पे उसका इंपॉर्टेंस है, किस तरह से उसका इंपॉर्टेंट है और आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए. ठीक है, तो अगेन आई विल टेक योर 7 to 8 minutes एंड आप उसके बाद अपने घर और मैं अपने घर. चलिए, सबसे पहले इफ आई टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस, if I talk about the importance of indices and reports, so my dear friends, the indices and reports are important for both the phases. Phase 1 में it is important in the general awareness part, and in phase 2 it is important in the ESI paper. In phase 1 general awareness, at least 4 to 5 questions, are every year asked. Every year at least 4 to 5 questions are asked from indices and reports, right? And if I talk about the phase 2 ESI objective portion, अगर मैं objective portion की बात करूं, so out of 30 questions, around again 4 to 5 questions which are approximately of 10 marks, right, which is approximately of 10 marks are asked in the phase 2 ESI objective part. and 10 marks कितने में से? 50 में से. भाई 50 में से अगर 10 नंबर आपको एक ही टॉपिक से मिल रहे हैं, so you can easily understand the importance of that particular topic. I should not tell you. And not only this, my dear friends, not only this, इतना काफी नहीं है. अगर आपको मैं 2023 के पेपर पे लेके चलूं, if I take you to the 2023 descriptive paper of ESI, 3 questions, all the 3 questions of 15 markers were from the reports. So now you not only have to cover reports as per the objective pattern, you also have to cover the reports with respect to the descriptive pattern as well. आपको सिर्फ डेटा याद नहीं करना, आपको रिपोर्ट को समझना भी है कि वो रिपोर्ट कह क्या रही है. ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. आई होप द इंपॉर्टेंस इज क्लियर. Now, what all you have to study for phase 1 from indices and reports, and what all you have to study for phase 2 if you are studying indices and reports. So if I talk about the phase 1, my dear friends, so you need to just focus on the facts, the figures, the data. For example, if you are studying let's say world global economic prospects, ठीक है, तो उसमें आपको phase 1 के लिए क्या पढ़ना है? जो डेटा है, ठीक है, जो जीडीपी फोरकास्ट आया होगा, किसने लॉन्च किया, कितनी बार लॉन्च होता है, ये सब फैक्ट्स, फिगर्स एंड डेटा, right? While if you are studying indices and reports for phase 2, you not only have to remember the facts, figures and data, but you also have to understand the report well. You have to go through the summary of the report to understand that what actually this report is telling us. For example, अगर again ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट है, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक की, आईएमएफ की, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये रिपोर्ट ये क्या कह रही है कि अगले 1 साल में पूरी दुनिया की इकोनॉमी किस तरीके से फंक्शन करेगी, या अगर पिछले साल की है तो पिछले 1 साल में पूरी दुनिया की इकोनॉमी ने किस तरीके से फंक्शन किया, राइट? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द रिपोर्ट. सिमिलरली अगर माइग्रेशन रिपोर्ट है तो आपको समझना पड़ेगा, पहले तो आपको फैक्ट्स, फिगर्स एंड डेटा तो पढ़ना ही है, उसके बाद आपको यह भी समझना पड़ेगा दैट दिस रिपोर्ट, व्हाट दिस रिपोर्ट इज सेइंग, कि अगर माइग्रेशन बढ़ेगा सो हाउ इट विल इंपैक्ट द इकोनॉमी, हाउ इट विल इंपैक्ट द रिलेशन बिटवीन द कंट्रीज, राइट? हाउ इट विल इंपैक्ट द ज्योग्राफी ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया जहां पे माइग्रेशन हो रहा है और जहां से माइग्रेशन हो रहा है, राइट? So you need to basically understand the report well so that you can write a 600 words answer in your examination. ठीक है, अब मैं आता हूं लिस्ट की तरफ. मैंने ऑर्गेनाइजेशन वाइज आपको लिस्ट दे रखी है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपको इन रिपोर्ट्स को और इंडाइसिस को तो पढ़ के जाना ही जाना है विदाउट एनी डाउट, माय डियर फ्रेंड्स. इफ आई टॉक अबाउट द वर्ल्ड बैंक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट एंड वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट. वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट से 2023 में क्वेश्चन आया था. इफ आई टॉक अबाउट आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Now, if you are studying this report for phase 2, let's say, so you need to understand how the financial stability shall be achieved in the upcoming year. पिछले साल financial stability achieve क्यों नहीं हो पाई थी,
क्या सरकारों की गलतियां हुई और क्या गवर्नमेंट और कर सकती है टू अचीव द ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, राइट। इसके बाद नेक्स्ट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट. If I talk about WHO, so you need to go through the global nutrition report. UNCTAD की world investment report आती है. It is not that important. You can put it at last in the priority list. But yes, अगर टाइम मिले तो डेफिनेटली आपको वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट करके जानी है, ठीक है. उसके बाद आ जाओ ILO पे, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, डायरेक्टली रिलेटेड टू द सोशल इश्यूज टॉपिक ऑफ ESI. ग्लोबल वेज रिपोर्ट, वंस अगेन सोशल इश्यूज टॉपिक ऑफ ESI. UNDP ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट से तो भाई कई बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ चुका है एंड यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन इन द डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन एज वेल. ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट से कई बार क्वेश्चन आ चुका है माय डियर फ्रेंड्स. एंड यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, आई शुड नॉट टेल यू हाउ मच इंपॉर्टेंट दिस रिपोर्ट इज, ठीक है. आगे चलते हैं. अब मैं बात कर देता हूं लास्ट में इंडाइसिस की, जो कि आपको करके जाने ही जाने हैं. करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, डेमोक्रेसी इंडेक्स, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एंड लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स. ये तो हो गए इंडाइसिस एंड रिपोर्ट्स. इसके अलावा यू नीड टू कवर सर्टेन एनुअल सर्वेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बजट इकोनॉमिक सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, NFHS, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, PLFS, नीति आयोग, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, राइट, इंडिया SDG रिपोर्ट, ठीक है, 15 फाइनेंस कमीशन. नाउ यू विल से भाई इतनी सारी बता दी. भाई साहब ये इतनी सारी नहीं है. अगर आप रिपोर्ट्स इंडाइसिस की लिस्ट देखने जाओगे तो 100 से ऊपर मिल जाएंगी. यहाँ तो मैंने आपको कुछ 20-25 बताई है, इतनी तो करके जानी पड़ेंगी. अगर इतना भी नहीं कर सकते तो छोड़ दो, ठीक है. 15 फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट और ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन एंड एसर रिपोर्ट ऑफ प्रथम, बस इतना करके जाना है आपको इंडाइसिस रिपोर्ट्स और एनुअल सर्वेज में एंड योर वर्क विल बी डन. 10 नंबर अगर ESI में पूछे जाएंगे तो 8 तो आपके आ ही जाएंगे, बिकॉज दिस इज द इंपॉर्टेंट लिस्ट, इट इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, ठीक है. तो इंपॉर्टेंट में तो इंपॉर्टेंट ही नंबर आएंगे. एंड यस वी हैव टू क्रैक द एग्जामिनेशन, द टारगेट इज टू क्रैक द एग्जामिनेशन एंड नॉट टू सिक्योर 50 on 50 मार्क्स, ठीक है. वो हमें करना ही नहीं है. ऑलराइट, दैट्स ऑल गाइज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो. इफ यू वांट सच मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि आपको और कौन कौन से टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए. थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस.